back, guys. Welcome back to my reaction channel. This is Dissect by the Dissect family. We are back with another diss track by Divine, and the गाना का नाम है सच बोल पता. Divine. It's back, dude. Divine नहीं छोड़ेगा. MMA को नहीं छोड़ेगा. So there were a lot of people saying कि भाई MMA कब diss track निकालेगा, कब क्या करेगा. So it turns out MMA came live on Instagram. He put up a story saying that कि dude मैं नहीं दूंगा डिस्ट्रैक्ट. एक दर्शा रहा है किसी फैन का, उसने स्क्रीनशॉट डाला था विच सेज दैट कि ब्रो आप डिस्ट्रैक्ट मत डालो, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीवन, यू आर ऑलरेडी 10 million subscribers down the YouTube line and you're the greatest. Then there was this one more person who wrote bars down for Divine Diss on the Gully Gang Diss, which was he said that ये diss track like these bars are better than the whole gang. तुम्हारा पूरा जो gang जो bars लिखता है. So yeah, and then there was this news which came out that he's going to take out a whole album which has going to contain 6 diss tracks for Divine and stuff like that were happening. So I mean, see, on my personal opinion, I don't give a damn about dissing, dude. ठीक है, diss करना नहीं आता. Diss culture is not this what you culture which you saying. Diss culture is very different. It used to happen back in the time in US जब north side and west side का diss होता था. If you remember Tupac versus Biggie, alright. So there were 2 label companies fighting with each other. There were so many rappers fighting with each other. Death होता है, गोलियां लगती है, gang war होता है. Diss battle originates from there. ठीक है, दिस बैटल इस ये जो अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन जो लड़ रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर क्लिकबेट, डूड. आप लोग देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ. दे आर हैविंग व्यूज, दे आर मेकिंग हेल आउट ऑफ देयर करियर्स. एमयूवी का करियर ऐसे स्टार्ट हुआ था. आई डोंट नो व्हाई डिवाइन इज डूइंग इट. आई एम लाइक, डिवाइन इज ऑन देयर ऑन द बिग स्टेज, व्हाई डू यू नीड टू डू इट? सो गोइंग फ्रॉम देयर, इफ यू सी MC Stan का Instagram live, it's like, dude, this thing is not this. Agree, dude. This is not like Machine Gun Kelly or Eminem. There has been no personal beef here, alright? कभी किसी बेटे को नहीं बोला and stuff like that. But ठीक है, what can we do? People wanna diss, they wanna diss, dude. Let's get into this song. बंदर सच बोल पट्टे. ले फिर फोकड़ का सप्लाई और गारंटी था तू देगा नहीं रिप्लाई. घूमला चश्मा इसमें टैक्स नहीं दिख रहा है. मैनेजर तुझे स्नैक्स से ना मिलना है. जितना उबला उतना जल्दी से छिलना है. बड़ा फटा मतलब तेरी देरी से सिलना है. नकली प्रोफेसर तू बच्चों पे चिल्लाए. तू नंगे पैरों में और ये रास्ते पे खिलना है. और सुना तेरे दोस्तों को मारता है. तू सड़ेला फल तेरे ऑर्गेनिक झाड़ का है. लड़का ये भड़काऊ बास किधर है? मिलने पे तेरा ये चाच किधर है? मुड़ मुड़ के देख जरा दांत. ये व्हाट्सएप के तरह आ रहा है. ही सेइंग कि भाई तुम मेरे को अब क्या हो गया, कहाँ गया तेरा रिप्लाई? ऐसे तो है, जब रफ्तार के साथ बीफ किया था तब तो एक दिन में तुम्हारे रिप्लाई आ रहे थे. अभी मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? कह रहा है आप कहाँ गए तेरे बार्स? हाँ, टेल मी वेयर इज अ बार्स. फिर उसने ऊपर बोला तू सड़ेला फल तेरे ऑर्गेनिक झाड़ का. आई मीन, यू नो, ही ऑलवेज कीप्स ऑन सेइंग दैट इज ऑर्गेनिक बट उसका जो पेड़ है, वो जो फल है वो ख़राब है. He's like, dude, अब तेरे को facts नहीं मिल रहा मेरे से spit करने के लिए. That's why I'm not taking out, because whatever I said, it's facts. And I agree to an extent what Divine say is all facts. It was all based on facts. उसमें ऐसा कुछ made up नहीं था. So yeah. किधर है? मुड़ मुड़ के देख दिमाग किधर है? तू कटल का पीछे छोटे शाख किधर है? इधर कर डाले हाँ नास इधर है. साथ फिगर हार्ड जिगर तू अत्तर रोड में और बास इधर है. ये पोस्टर डाले नास इधर है. So if you remember, Nas was a big inspiration for Divine. Nas is a rapper who basically took hip hop from scratch. LL Cool J, Nas, these are the people who took hip hop and made hip hop what hip hop was, spitting bars, spitting feelings. So there was a interview with Divine. So he's like, dude, मेरे पास अभी नास का सपोर्ट है. नास से मैं बात कर चुका हूँ. तू कौन है? तू आर्थर रोड पे और मैं बार्स इधर हूँ. ये पोस्टमार्टम है, तू है. Just saying, dude. I mean,
Arthur Road I think a place in Mumbai, and ये bars को sports postmortem मतलब he's just killing these bars, and Emmy Hayway has no reply. मोटम तू है लाश इधर मैं बाजीगर हकीक की कीड़ा तू नकली शाहरुख लिंबू पंच लाइन सी देसी दारू किया देख के तूने नेसी को चालू फ्लोज का ढापा तू पहले से चालू तू नकली शाहरुख तो you know his name is शाहरुख शेख. So Emmy Way को शाहरुख शेख बुलाते. इवन रफ्तार said that तू नकली शाहरुख है अपने डिस में, एंड इसमें ये बोल रहा है तू शाहरुख असली शाहरुख खान नहीं है, एंड तेरे जो पंच लाइन्स है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज फक. मैं हेट है ये पहले से मालूम पुरानी पर्ची बिना देख के ही फाड़ू बीफ रैपर नहीं तू है बेसन का लाड़ू मुसरी लगी तेरे बेसन में मारू लेबर शट कर दे तू स्टेशन पे चालू या किंडरगार्टन में इधर हड़म में दिल भी गार्डन है संगीतकारन है संगीतकार में तेरे को मालूम है दारू पीने के लिए भी तू साथ में आता था गली बॉय के सेट पे तू चाटने आता था मेरे गाने बजते तू साथ में गाता था एक्स का भी मैसेज मुझे रात में आता था डिमांड में मैं रिमांड में लो बंदे लड़ोगी तू चिल्ला. दारू पीने के लिए तू साथ में आता था, गली बॉय के सेट पे तू चाटने आता था, मेरे गाने पे बजते तो साथ में गाता था. I mean, yeah, that's what you say. I saw a photo somewhere in which Krishna, Divine, Emmy Way, all of them are together in it. तो ये बोल रहा है कि यार तू मेरे इधर से उठ के गया है, तू मेरे मूवी में भी फीचर हुआ है, you should pay the respect when it's due, and इधर तू मेरे पे डिस बना रहा है. I mean, come on, pay the respect to the homies, right? Though Divine has somehow started this fight by those beef जब start हुई थी वो 80 millions वाला stream वाला से, but I mean Emmy Way should not diss back. It's just like Eminem going with Machine Gun Kelly, but here he's saying that dude तुम मेरे साथ पहले पे थे, तुम मेरे साथ काम किया, तुमने मेरी चाटी है, मतलब you legit became something from what I thought, ठीक है, and here you are just मेरी ही तू मेरे से ही views ले रहा है. Come on, where are your ethics? आगे सो बचकाने किस कर फिर हिला के सो बेवड़े अंकल को भी नचा भी दो बेवड़ा डांसर बेवड़ा डांसर नाच 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 जरा बेवड़ा बनकर बेवड़ा डांसर बेवड़ा डांसर नाच 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 जरा बेवड़ा बनकर क्वारंटीना तो कभी सीन में नहीं था तेरा रफू स्ट्रेस मेरे जीन्स में ही था ओपन करवाया तू बिल में नहीं था घुस गया छुआ तू मिल रहा नहीं था ट्रैप इसको पीनट बटर दो स्लैप 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 इस बुक और शक्ल को एंड टॉप हिल से इसको सीधा ढकल दो पहले में केला इस चाबी बंदर को अब बैठ के खा ले या तो लेट के खा ले रस को देख देख के चेप के खा ले ठंडा करके या तो सेक के खा ले सच बोल पट्टा हाथ मार जमीन पे स्ट्रेट ये थर्ड रस को देख के तू चिपकी खा ले. So lot of people say that he uses lot of रस का style and how Russ writes and what Russ writes about, and ये इसको बंदर बुला रहा है. As you can see the art on it, like there is a बंदर on it, and ये दारू पी के नाच रहा है. Like अब तू बस नाच तू बस you're just a drunken alcoholic, just नाच मेरे बंदर. चल बर्फ पे लेट नहीं जलती तेरी बर्फ में बैठ होगा इसने देखो नरक का गेट ये वाले नाम थोड़े फर्क तो देख तड़प के तू रैप करता है पार्टी में लिरिक्स को तू लैक करता है 8 साल के भाई को भी वैक लगता है पटेली करने का तो फैक्स लगता है चाबी वाला बंदर उखड़ेगा क्या तेरा जमीन है पंजर कंबल को ओढ़ ले ये फ्लो है दिसंबर सर मुझे दे दो आज जय शिव शंकर अब भयंकर देंगे रफ्तार भाई इसको तो लंगर ही देंगे आने वाले गाने सब दंगल ही देंगे पीकेगा भी और टिकेगा भी होके अमीर काम दिखेगा भी मेरा रिस्पेक्ट कभी मिटेगा नहीं नकली हाइप से तू सीखेगा नहीं छोटे मोटे रॉक से कौवे करते ये फट्टू भागेगा अगर कौवे सर पे सीना तान किया नहीं जीते डर के जिंदा कैसे हर महीने मरते कभी इसके हाथ से कभी उसके हाथ से खट्टा लग गया उसके मुद के हाथ से सोचा ले तू हम मुद के आते चिंगम खत्म चलो धूप के आते बेवड़ा डांसर मेरा बेवड़ा डांसर अब बेवड़ा बनकर चल नाच 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 जरा बेवड़ा बनकर अब बेवड़ा डांसर नाच 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 जरा बेवड़ा बनकर नाच 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 जरा बेवड़ा बनकर हिरोशिमा नागासाकी तेरा हाल है जापानी तू नाचने वाला बंदर और मेरे पास है चाबी हिरोशिमा नागासाकी तेरा हाल है जापानी तू नाचने वाला बंदर और मेरे पास है चाबी
मजाक के तरह आ रहा है। ही सेइंग कि भाई तू मेरे को अब क्या हो गया, कहाँ गया तेरा रिप्लाई, ऐसे तो है। सो वी आर डन विद दिस सॉन्ग। तो गाना तो बहुत मस्त था, ठीक है, बिकॉज लास्ट में बोलता है जैसे एनीवे बंटा नाचता है, ठीक है, अपने गानों में मचाएंगे वैसे ऐसे करके नाचता है, और जैसे भी नाचता है तो उसका वो मौखरी उड़ा रहा है, उसकी मजाक उड़ा रहा है। खैर भाई तो बेवड़ा है, सिर्फ दारू पी के एक बेवड़ा बंदर है जो नाच रहा है। तो या ही इज टेकिंग शॉर्ट्स एट इट। उसने बोला भाई रफ्तार मिलके उसको लंगर देंगे, मतलब गानों का लंगर देंगे, इन द सेंस दैट दे गोना टू बीफ द फक आउट ऑफ हिम। दे गोना बी लाइक इतने गाने इतने डिस कर डालेंगे कि एमएमए की औकात नहीं है कि वो फिर से उनसे डिस करे। और उनका यही कहना है भाई, डिवाइन का अच्छा था डिस, फैक्ट्स थे, लिरिकली अच्छा था। द सॉन्ग इन डिवल्स व्हाट 7.5 out of 10। I will see you guys in the next reaction. Thank you for watching.